اور اب سیاسی محاذ کی بات کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والی مریم، شکریہ، سائفر دوبارہ زندہ کر دیا۔ جو اب تک مراسلے سے انکاری تھے وہ بھی مان گئے، سچ ثابت ہو گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ٹیکسلا جلسے میں وفاقی حکومت پر وار، کہا کہ نیا ڈرامہ آ گیا ہے، سائفر گم ہو گیا۔ مریم بی بی، سائفر گم نہیں ہوا، ماسٹر کاپی وزارت خارجہ میں ہے۔ ہم نے سائفر صدر، قومی سلامتی کمیٹی، قومی اسمبلی، چیف جسٹس کو بھجوایا۔ نواز شریف بہت بزدل آدمی ہے، کوئی پکڑنے آئے تو باہر بھاگ جاتا ہے۔ مجھے دھمکیاں نہ دو، جیل میں ڈال دو، ڈرنے والا نہیں، حقیقی آزادی کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، تیار ہو جاؤ، کپتان تیاری کر رہا ہے۔ مجھے ان کے پلان کا پتا ہے لیکن ان کو میرے پلان کا علم نہیں۔ سب نے میری کال کا انتظار کرنا ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، ایک دم کال دوں گا۔ جو سچ نہیں بول سکتی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مراسلے کو اٹھا دیا، اور شکر سب کے سامنے آ گیا کہ وہ واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ میں ساری جگہ لے کے دکھایا بھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خط نہیں ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی سپوکس پرسن مریم، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ ان کے ساتھ میڈیا بھی مل گیا۔ جو لفافے والے، انہوں نے بھی کہا مراسلہ نہیں ہے۔ نیا ڈرامہ ہو رہا ہے میری بہنوں، سنو کہ وہ جی سائفر گم گیا ہے۔ مریم بی بی، وہ سائفر نہیں گما۔ آپ چاہیں گی کہ گم ہو جائے، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے والد نے اور چاچے نے ہماری حکومت کرائی۔ آپ اپنے فورن آفس سے پوچھیں تو کاپی پڑی ہوئی ہے، وہاں ماسٹر کاپی فورن آفس میں ہے۔ دوسری دفعہ میرے گھر پولیس بھیجی ہے، بلکہ تیسری دفعہ، بجائے یہ دھمکیاں دینے کے جیل میں ڈال ہی دو۔ حقیقی آزادی کی تحریک چل پڑی ہے، تمہارے پاس اتنے جیل نہیں، قوم تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، نہ ہمیں تمہارے جیلوں سے کوئی خوف ہے۔ سب سن لو، پاکستانی قوم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے۔ جیل تو چھوٹی سی چیز ہے ہمارے لیے۔ قوم کا کپتان اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف بڑا بزدل آدمی ہے جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے، ملک میں پیسہ چوری کرنے آتا ہے، اور جیسے ہی کوئی اس کو پکڑنے لگتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے۔ الیکشن کمشنر شریفوں کا گھر کا ملازم ہے، وہ ان سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے جو میں اب مارچ اسلام آباد کی طرف جو میرا پلان بن رہا ہے، اس میں آپ سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے تیاری کرنی ہے، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔ سب تیار ہو جاؤ۔ ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے، ڈاکوؤں سے ہے۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف، تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن آپ کو میرے پلان کا نہیں پتا۔ ایک دم کال دوں گا، سب نے میری کال کی انتظار کرنی ہے، زیادہ دیر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار، اپوزیشن میں سائفر کو ماننے سے انکار کیا، حکومت ملی تو حساس قرار دیا، اور اب اسی حساس معاملے کا سائفر نمبر اور تاریخ بھی عام کر دی۔ عمران خان نے تو معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے رہنماؤں کو متعلقہ ملک کا نام لینے سے روکا، لیکن موجودہ حکومت نے سائفر پر موجود وزارت خارجہ کا سیکرٹ کوڈ عام کر کے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ مریم نواز نے سائفر غائب ہونے سے متعلق گمراہ کن ٹویٹ بھی کر دیا۔ جیب سے نکالی خالی پیپر، یہ ثبوت ہے، پر کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں، عجیب بات ہے بھائی۔ اتحادی حکومت کا دھمکی آمیز خط پر متضاد موقف، حکومت سے باہر تھے تو میں نہ مانوں کی رٹ۔ اقتدار میں آتے ہی سائفر حقیقت بن گیا، عمران خان کا موقف ایک بار پھر سچ ثابت ہو گیا۔ عمران خان نے 27 مارچ کو جلسے میں سائفر کا ذکر کیا تو مریم نواز سمیت پی ڈی ایم رہنماؤں نے خط کو ڈرامہ قرار دیا۔ یہ خط بھی جعلی، یہ بھی جعلی، جھوٹا لیٹر ہے۔ آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا، 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ پہلے کہا کہ امریکہ، اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اور بات کر رہا تھا۔ ڈرامہ بازی کس کو دکھا رہے ہیں؟ عمران خان جھوٹے سازشی خط کا ڈرامہ لے آیا۔ یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ تو آپ بیچارہ کیا کرتا؟ پرچی جیب سے نکالی خالی پیپر، یہ ثبوت ہے، پر کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں، عجیب بات ہے بھائی۔ یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، ڈرامے نہ مت بناؤ۔ خط آیا ہے، پھر دھمکیاں دی ہیں، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ کھودا پہاڑ اور نکلا ایک خط کی فوٹو کاپی۔
अपोजिशन में जिन्होंने झूठ और ड्रामा का राग अलापा, इख्तिदार में आए तो साइफर को न सिर्फ हकीकत माना बल्कि इसको इंतहाई हसास मामला भी करार दिया। पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग की। साइफर की ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, कॉपी थी वो वजीर आजम हाउस से गायब है। नून लीग का दोहरा मायार यहीं पे खत्म नहीं हुआ। हसास मामले पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने वालों ने अब खुद इस पर सियासत शुरू कर दी। हसास करार दिए गए साइफर का नंबर, मुल्क का नाम और तारीख भी पब्लिक कर दी। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में वाशिंगटन से आने वाले साइफर, उसका नंबर और तारीख दर्ज है। काबीना कमेटी की समरी में लिखा है, वाशिंगटन से 7 मार्च 2022 को साइफर आया। मरियम नवाज ने साइफर गायब होने से मुताल्लिक गुमराह कुन ट्वीट भी कर दिया, जिसमें दावा किया कि पकड़े जाने के खौफ से साइफर गायब कर दिया गया। जराये का कहना है कि मरियम ने जिस साइफर के गायब होने का दावा किया वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। मरियम नवाज के ऐसे हसास मामले पर गुमराह कुन ट्वीट का मकसद क्या है? मरियम नवाज के ट्वीट की नफी उनकी पार्टी की वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी कर दी और तस्दीक की कि साइफर न सिर्फ मौजूद है बल्कि महफूज भी है। इमरान खान ने तो मामले की हसासियत को समझते हुए रहनुमाओं को मुताल्लिका मुल्क का नाम लेने से भी रोक दिया था। हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। मौजूदा हुकूमत ने साइफर पर मौजूद वजारत खारजा का सीक्रेट कोड आम करके मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खातून जज धमकी केस में 7 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। पीटीआई की कानूनी टीम के राबता करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरी ब्रांच का अमला फौरी अदालत पहुंचा। इमरान खान की जानिब से बाबर अवान एडवोकेट ने वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी, अबूरी जमानत की दरखास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ जज धमकी केस इब्तदाई तौर पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात खत्म की तो केस मुंतकिल हो गया। केस का वाहिद मकसद करप्शन माफिया के खिलाफ पुरअमन तहरीक रोकना है। एटीसी से केस मुंतकिल होने पर जमानत भी मुस्तरद हो गई। हुकूमत ने बदनीयती के तहत झूठा मुकदमा बनाया। इमरान खान की आज़ादी और जान को खतरा है, जमानत दी जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए इमरान खान को 10,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूएन सेक्रेटरी जनरल के मिलिट्री एडवाइजर से मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब, इसकी तबाहकारियों पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिलिट्री एडवाइजर के यूएन उमूर के फरोग के लिए किरदार को सराहा। यूएन मिलिट्री एडवाइजर ने सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। मिलिट्री एडवाइजर ने अमन दस्तों, इंसदाद दहशतगर्दी उमूर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जमीन निगल गई या आसमां खा गया, डेरा अल्लाह यार से लापता सैलाब मुतासरा बच्ची नगमा 1 माह गुजर जाने के बावजूद बाजियाब न हो सकी। 5 साला बेटी की दुखियारी माँ दुहाइयां दे रही है। इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों से बेटी की बाजियाबी के लिए इल्तिजाएं कर रही है। कहती है कि मेरी सदा अर्श वाला जरूर सुनेगा, जिसने भी बच्ची को उठाया है खुदारा किसी मस्जिद या सड़क पर छोड़ जाए, बेटी के लिए तड़प रही हूँ। मेरे को कोई लाश मिली है न कि नंडड़ी दा कोई 10 पता मिले, मैं इतना तो कोई ना हुकूमत तावन करें दी पेना काश है। मैं नंडड़ी चाह गए को तरस ना आया। इया को कुरान दे सदके कई मस्जिद ते छोड़ वने जा रोड दी वाट का छोड़ वने भी छोड़ वन। मेरी दुश्मनी तो कहीं न आई, मैं तो तवेल मारी अन पे हमें खबर ना आई। मैं अपने बच्चे अनी तविल वैसा देख से नंडड़े ही रोंदे पे बद्दुआ का डर कोई ओ जालिम छोड़ वनी नफीस तक क्या दुश्मनी मंगसी रड़सी पे उदी दात अरशते वैसाई माँ दी पोती मेढ़ाई कुरान मेढ़ाई मेरी नासूम छोड़ वन। और कुछ भी नहीं सस्ता, आटा, दाल, चावल, सब्जियां सब कुछ महंगा है। अब कुछ बचत नहीं होती। हुकूमत गरीब का ख्याल करे, खाने पीने की चीज़ों की कीमत कम की जाए और फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। महंगाई से तंग आवाम दुहाइयां देने लगे।
सस्ता, सब कुछ महंगा हो चुका है। गवर्नमेंट को लोग वोट देते हैं कि काम करेगी, कुछ भी नहीं करते। बहुत परेशानी है, खाएं या किराया दें। आटा, दाल, चावल, सब्जियां, टमाटर 300 रुपए किलो, आटा 130-40 रुपए किलो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसकी इनकम देखें आप, इनकम को कंपेयर करेंगे, 500, 600, 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले एक दिन के अंदर पूरा गुजारा नहीं कर सकता। इनको तो फिक्र ही नहीं है, ना आटा की है ना किसी चीज़ की है, हर चीज़ तो आसमान पे बातें कर रही है। आटा ऐसा कि मार्केट से गायब है। ओपन मार्केट में ले तो 110 रुपए किलो मिल रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? फेयर प्राइस शॉप पे आटा आता ही नहीं है, होटलों पर बिक जाता है। कभी कभार रिटेल स्टोर पर आटा आ जाता है तो लोगों को मिल जाता है। टमाटर से लेकर सब्जी आदमी नहीं ले सकता है। जब रिटेल स्टोर पे जाओ आटा आ रहा है, सुबह जाओ बोला नहीं खत्म हो गया। महंगाई तो आसमान पे चली गई, हर चीज महंगा है। तकरीबन 50 किलो वाला बोरी जो है 5,500 पे मिल रहा है। हुकूमत ने रेल के किराए बढ़ा दिए। महकमा रेलवे ने किरायों में 23% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकोनॉमी क्लास का किराया बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया। स्टैंडर्ड क्लास का किराया 4,200 से बढ़ाकर 7,000 रुपए मुकर्रर। लाहौर और कराची के दरमियान एसी स्लीपर का किराया 9,000 रुपए हो गया। बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन एसी बिजनेस क्लास का किराया 7,000 रुपए कर दिया गया। इस्लामाबाद में मुसलसल 5 रोज से किसान इत्तेहाद का धरना जारी है। किसानों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत को धमकी दी कि मुतालबात न माने गए तो पार्लियामेंट के सामने धरना दिया जाएगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा कि बदनीयती से काम लिया तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। एक कॉल पर लाखों किसान इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ताजा सूरत हाल क्या जानेंगे, वहीं मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर। की मंजूरी के लिए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 5वां रोज है और गालिबन अगर आज सुबह इनके मुतालबात पूरे होते हैं तो ये वाइंड अप हो जाएगा। यहाँ से खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी ये कहते हैं अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। हम अपने मुतालबात जो है वो मनवा कर उठेंगे। छुट्टी का तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने अपनी एक नाअहली दिखाई है। ये बैठ बैठ के चले जाएंगे, हम जाने वाले नहीं है। इन्होंने जो टाइम हमें दिया है, अगर ये नहीं करेंगे डी चौक की तरफ मूव करेंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की जानिब से इनको कल तक की यकीन दहानी है, मुतालबात इनके पूरे होते हैं, अगर नहीं तो ये डी चौक जाके धरना देने का इरादा रखते हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की विमेन एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस दुबई में मुनक्किद की गई, जहां मोटिवेशनल स्पीकर्स ने खातीन को मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाह किया। रजिया रुकनुद्दीन की रिपोर्ट। मेमन ऑर्गेनाइजेशन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस दुबई के मैदान होटल में मुनक्किद की गई। WMO ग्लोबल लेडीज चेयरपर्सन शबाना अब्दुल रज़ाक साहिबा ने सबका इस्तकबाल करते हुए कहा कि WMO की नौजवान खवातीन की हौसला अफजाई करना जरूरी है। Lots of it has changed, but lots of it needs to change. हर वक्त हमारे दिल में एक खौफ होता है, will I be able to do this? Will I be able to achieve this? Can I go there? Can I reach places? ये डर निकालने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस से की। मुख्तलिफ इंस्पिरेशनल स्पीकर्स थे जिन्होंने मॉडर्न इश्यूज पे बातचीत की। इनमें से मोटिवेशनल स्पीकिंग, NFTs, मेटावर्स, ऑनलाइन बेकरी, क्लाउड किचन, कंटेंट क्रिएशन और ई-कॉमर्स शामिल थे। स्पीकर्स ने बताया, जब भी आप तब्दीली की बात करेंगी, स्टेटस को चेंज करेंगी, तो कुछ पोजीशन हिलेंगी, कुछ तरीक़ेकार हिलेंगे। वो बहुत सारे लोगों को हर्ट तो करते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ भी उसी में छुपी होती है। नो पेन इज नो गेन। तो ये एक माइंडसेट की चीज़ है, और अगर मुझे जो लोग ग्रो करना चाहते हैं वो फॉर श्योर नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। It is inspiring young women and giving them hope and courage. WMO एनुअल जनरल मीटिंग के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज में एयरवाई फैमिली की तरफ से खसूसी एशाई का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन बासित अहमद के साथ रज़िया रुकनुद्दीन, एयरवाई न्यूज़, दुबई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयरवाई न्यूज़।